सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेट्स। आई एम आकर्ष शर्मा। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज चलाते हैं जिसमें मेरे दोस्त उसामा मुबारक आपको आके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर देते हैं। हमारी ये वाली सीरीज़ थोड़ी डिफरेंट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी लॉ कर रहे हैं या जिनकी जस्ट कंप्लीट हुई है। ये हमारी एक गाइडेंस सीरीज़ रहेगी जिनमें हम बहुत सारे एडवोकेट से मिलेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे एंड उन्होंने अपनी जर्नी में अपने एक्सपीरियंसेस में क्या क्या सीखा वो हमसे शेयर करेंगे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुज गुप्ता। हेलो एवरीवन। इनका मैं इंट्रोडक्शन क्या दूं ये तो हम सर खुद ही बताएंगे, क्योंकि 2001 में ही गॉट एनरोल्ड, 20 ईयर से ये प्रैक्टिस में हैं एंड इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ में जो आज हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि क्या फर्स्ट एडवोकेट हैं अपनी फैमिली में या कुछ बैकग्राउंड आपका लॉ का रहा है? First of all, thank you Akash for giving me this opportunity to guide my young upcoming lawyers. बिल्कुल मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट देयर इज अ लॉयर इन एवरीबडी राइट सिंस चाइल्डहुड। हर कोई अपने बचपन से एक लॉयर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा हो जाता था, तो जब झगड़ा हो जाता था तो सीधा हम अप्रोच करते थे मम्मी के पास। तो दैट वाज आवर कोर्ट, सो दैट वाज माय प्लीडिंग बिफोर हर। मम्मी ही इज नॉट गिविंग मी माय पेंसिल, मैडम ही इज नॉट गिविंग मी माय पेंसिल, ही इज टेकन अवे। सो दैट इज आई एम अप्रोचिंग द कोर्ट। तो हर किसी में मेरे हिसाब से एक लॉयर होता है। तो यस ऑफ कोर्स, हाँ, फैमिली से मेरे कोई लॉयर नहीं रहा है पहले। So it was a new field for me professionally, very true. Okay. तो सर ऐसे मतलब ये इस फील्ड में जाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? What was your मतलब 12th पास करी तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे को लॉ में जाना है without any background? No, actually it was in my case not after 12th when I entered this. I took up graduation in law. I took up first. I was pursuing company secretary course. Okay. Over there I came across a friend of mine. He is now a judge, district judge of in Gujarat. So he guided me. He brought form for me for LLB entrance exam at that point of time. So on his advice I had filled up the entrance. I scored well. I was a rank holder. I got a good college, and then the journey commenced. So okay. It was not my objective right since my childhood or after my 12th to become a lawyer. Okay. तो सर जैसे अभी आपने शेयर किया कि एकदम से वो ट्विस्ट ही आया आपकी लाइफ में। It was a twist. It was a twist और जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये जर्नी अभी तक 20 साल की रही कैसे? Almost 2 decades you are in this profession. तो yeah, how is your journey if you have to explain that? God forbid, and thank you God for not breaking this journey at any point of time. Struggle. The first phase is always a struggle. The day I entered the profession in 2001 September, I got enrolled with Bar Council of Delhi, and I was like, I am moving on a path and I don't know where do I have to stop, where do I have to take a lunch, where do I have to take a dinner. कुछ नहीं पता. It was like a passion at that point of time. And the journey, when it commenced, I started from High Court and Honorable Supreme Court of India, High Court of Delhi. I was practicing with Mrs. Amita Gupta, the renowned lawyer. At that point of time, she was handling the MCD cases, writ petitions. The very first day, she sent me to Honorable Supreme Court of India, and I was like, I was not aware of कि जाना कैसे है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना कैसे है. तो इट वाज अ स्ट्रगल, दैट वाज अ स्ट्रगल. देन understanding the court proceedings was a struggle because we had qualified law graduation. It was an academic session. Academics and practical is altogether different. दोनों में बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है. लेकिन professionalism is always based on the theory taught during academics. So, and that is the eligibility criteria also. It was tough. Initially we heard that it takes around 5 to 6 years at least to make your own standing.
So we were very clear, I was very clear in my mind कि 5-6 साल लगने हैं. 5-6 साल तो आप भूल जाओ, किसी कमाई को कैसे चलना है पता नहीं है, चले जाओ. I made one motto at that point of time that I have to learn. And when I was writing the word learn, अपने आपको बार बार ना सेल्फ एसेस करना पड़ता है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं इनिशियल स्टेजेस में जिसके अंदर लगता है कि नहीं, पेशेंस लूज हो रही है. तो मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते समय लिखा लर्न, और लर्न लिखते समय जब पहला लिख रहा था मेरा पेन एल पे रुक गया, एल पर नहीं चला, वो ई से शुरू हुआ. तो पता लगा लिखा गया अर्न, EARN, एल छुप गया, मतलब आया ही नहीं, एल साइलेंट हो गया, एल ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो इनविजिबल हो गया. देन आई हैड टू रीराइट इट एल. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अर्न तो लर्न में छुपा हुआ है ऑटोमेटिकली. तो तब मेरे को समझ आ गया कि अगर लर्न कर लिया तो अर्न तो मिलेगा ही मिलेगा. लर्निंग लिखा तो लर्निंग में अर्निंग तो ऑटोमेटिकली है ही है. सो द फर्स्ट थिंग इज योर लर्निंग जर्नी. इनिशियली यस इट वाज टफ, बट विद द पैशन ऑफ लर्निंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को लर्न क्या करना है, किस फील्ड में करना है, क्योंकि एडवोकेसी इज नाउ अ वेरी वास्ट फील्ड. It is civil, criminal as people generally know it, but it is much beyond it. It is civil in property, civil in matrimonial, civil in IPR, civil in writ jurisdiction, appellate jurisdiction, Supreme Court jurisdiction. So there are so many jurisdictions involved. So civil itself is so vast. Then criminal, if you move on to criminal, then criminal is, it starts from the basics is 138, then section 200 complaint, then FIR 156 CRPC, then you move on to POSCO, then you move on to other rape, then there are number of offenses and people they specialize in particular dealing with particular offenses. Yes. So the journey is I should say it's a learning journey of learning which never ends. In advocacy, learning never ends. Learning never ends throughout the life, but in advocacy it never ends. That today you learn some law, tomorrow there's a new law coming up. It is being repealed, it is being replaced, it is being substituted, it is being interpreted in a different sense by the Honorable Supreme Court or High Court, interpreted in a different sense in peculiar facts and circumstances of a case. So it is always different like that. So you keep on learning. So सर व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, तो वो होता है ना कि एक नया बच्चा फील्ड में घुसा है, तो उस समय जो कहते हैं फर्स्ट स्टेप्स, लाइक छोटा बच्चा फर्स्ट स्टेप चलता है गिरता है, तो उस समय आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? लाइक जैसे आपने अभी लर्निंग और सब कुछ तो बताया, एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आप उस समय फेस करते थे? दैट रिकॉल्स मी ऑफ टू थ्री इवेंट्स. द वेरी फर्स्ट डे आई वाज इन कोर्ट, आई वाज डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. यस सर. आज की तारीख में जैसे कमरे हैं, जैसी हाई कोर्ट है जैसी दिखाई देती, तब वैसी नहीं थी. हाँ जी. जॉइंट रजिस्ट्रार्स के पास इतने छोटे कमरे थे जो शायद 30,000 के एडीजेस के पास हैं उससे भी छोटे कमरे हुआ करते थे. और उस जॉइंट रजिस्ट्रार की कोर्ट पे बहुत भीड़ होती थी. तो एंड इट वाज सिचुएटेड इन बिटवीन द रिकॉर्ड रूम्स, आई टेल यू. सो आई रीच देयर, द मैटर वाज कॉल्ड and I did not know when the matter ended and I was out of the courtroom. I did not even give my appearance. So it was a troublesome. After few days I was directed to take a passover in the court of Justice Mr. Manmohan Sareen at that point of time. And it was Honorable Justice Ms. Sharda Agarwal ji was there, and Honorable Justice Mr. Manmohan Sareen was there. It was a division bench. I was present before the court. Both of the judges, they had opened their files, and I was looking behind कि कहीं मैडम आ जाएं, शायद अभी भी आ जाएं. तो but जब वो नहीं आई, yes young man, that was the word from the court's mouth. I said, Your Honor, my senior advocate, and that was I was unable to speak. I was so nervous. Senior advocate Miss Amita Gupta, don't say she is in Supreme Court. Supreme Court is off today, young gentleman. No, Your Honor. And I was like,
what to say next. I said, no, she is in other court, she is on her legs in other court, I request for a passover. Okay, granted. So there are difficulties, but जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो आपको ये सारे फेजेस पार करने पड़ेंगे. अभी आपने कहा बच्चा चलेगा, गिरेगा, फिर चलेगा, एक दिन दौड़ने लगेगा. तो वही सिचुएशन है. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, द मोर यू अपीयर, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में. यंग लॉयर्स जिनके लिए आप ये मोटिवेशन का प्रोग्राम रख रहे हैं, उनको मैं जो अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बता सकता हूँ मैं बिल्कुल बताऊंगा. आई थिंक योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर मी. Yes sir, it's about your experience. Like even though you are in this field from 2 decades, still now there must be some difficulties you face on daily basis, और कभी ना कभी अभी भी कुछ ना कुछ difficulties आती ही होंगी. तो वो चीज़ आप क्या होती हैं और आप डील कैसे करते हो? देखिए, difficulties are part of life. Professional difficulties are somewhat different. No, they are not different, I feel like, because profession is part of life, difficulties are part of life. Similarly professional difficulties, उस टाइम के अंदर professional difficulties जो होती थी वो होती थी हमारे को रिसर्च वर्क, जजमेंट्स ढूंढना. क्योंकि वो जजमेंट्स ढूंढने के लिए आपके पास या तो आपकी अपनी लाइब्रेरी हो या फिर आप लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कीजिए. एंड ऑनेस्टली वी डिड नॉट हैड दैट मच ऑफ मनी टू पे फॉर दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर लाइब्रेरी. इवन हाई कोर्ट की मेंबरशिप लेने के लिए जितना पैसा खर्च करना है हर महीने, वो भी लगता था कि कैसे करें. तो लाइब्रेरी में बैठना तो बड़ी बात होती थी. और आज की तारीख के अंदर आपके पास, हमारे पास अवेलेबल है एक डेटाबेस ऑन कंप्यूटर्स, ऑनलाइन डेटाबेस है. लेकिन तब नहीं हुआ करता था. तब वो जजमेंट एक एक किताब खोल करके आप उसके अंदर इंडेक्स ढूंढ करके ऑर्डर 6 रूल 17 पे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स पे जजमेंट ढूंढ रहे हो. पता लगा आपने जजमेंट्स निकाली 2 दिन 3 दिन 4 दिन की मेहनत करके, और आपके सीनियर ने आपके सामने उनके बाद ले आके रखी. बेटा ये तो जगह अगेंस्ट में ले आए आप जजमेंट, हमें तो प्लेंट अमेंड करवाने की चाहिए थी, आप ले आए प्लेंट अमेंड क्यों ना हो. ओके, सो दैट वाज, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट इट इज, आज लगता है कि उस समय लगता था कि हमने इतनी मेहनत करी और काम की चीज नहीं मिली, कैसे ढूंढे. नेक्स्ट डे माई सीनियर यूज टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स एंड से कि जाओ लाइब्रेरी से निकाल लो, ये केस दोपहर में लगा हुआ है, वील आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट. आई वाज लाइक सरप्राइज कि ये निकालते कहाँ से हैं, इनके पास कौन सा खजाना है जिसमें से ये निकाल के ले आते हैं. एंड इट यूज टू हैपन रिपीटेडली. तो आज की तारीख की आप अगर प्रॉब्लम्स पूछते हैं, कोविड पेंडेमिक आया, कोविड पेंडेमिक से पहले कोविड पेंडेमिक अपनी डिफिकल्टीज लेकर के आया. आज भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर हम हियरिंग कर रहे थे, ब्रेक हो रही थी वॉइस, बार बार ऑडियो डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही थी, कोर्ट को भी अपना बंद करके दोबारा से चालू करना पड़ा हियरिंग. तो ये एक डिफिकल्टीज है, लेकिन ये तो टेक्निकल ग्लिचेस है, जो टेक्निकल इश्यूज है. टेक्निकल इश्यूज के अलावा हम एडवोकेसी की अगर डिफिकल्टीज समझते हैं, तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है और ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस, द अपॉइंटमेंट ऑफ अनएक्सपीरियंस जजेस. जब से मैंने ये पाया है कि जुडिशरी में आने के लिए वो जो क्राइटेरिया था 3 साल की प्रैक्टिस, वो खत्म करी है. तब से यंग लॉयर्स, फ्रेशर्स, दे ट्राई टू प्रोसीड टूवर्ड्स जुडिशरी. दे क्वालिफाई, दे आर वेल क्वालिफाइड, इंटरव्यू मेंस पास करते हैं, पहले प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, तब जाकर के वो जज की पोस्ट पे आए हैं. तो दे आर फुल्ली एलिजिबल, बट दे लैक द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस्ड by a lawyer and also by a litigant. So they do not have that experience. Yes sir. Now in today, after having an experience of around 20 years, I feel कि उनको वो चीज नहीं पता, तो जिसकी वजह से उनको समझाने में हमें डिफिकल्टी आती है. दूसरी बात कि एक रिलेशनशिप होता था जो हमारे टाइम में हमको सिखाया भी जाता था और हमको हर किसी को देख करके सीखने को भी मिलता था, एक रिस्पेक्ट टू द सीनियर.
सीनियर कोर्ट में आए हैं, जूनियर्स खड़े हो जाते थे, उनको बैठने की जगह देते थे, जजेस भी उनको रिस्पेक्ट देते थे, बुला लेते थे, आइए रावल साहब, आइए गुप्ता जी। आज की तारीख के अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फाइंड इज़ अ डिफ़िकल्ट। लेकिन हाँ, यंग लॉयर्स के लिए अगर हम बात करें, यंग लॉयर्स की डिफ़िकल्टी कुछ और है। यंग लॉयर्स की डिफ़िकल्टी है टू अर्न। वो चाहते हैं कि बस हम खड़े हो गए, बन गए, वकील बन गए, आज से हमारी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस शुरू। हम तो, और वो जब नहीं मिलता तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है। सी, एक प्रैक्टिकल लाइफ में चलिए, अगर आप, मैं, कोई भी बीमार पड़ते हैं तो वी डू नॉट अप्रोच ए डॉक्टर हु हैज जस्ट क्वालिफाइड। वी वांट टू अप्रोच ए डॉक्टर, वी वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम ए डॉक्टर who has enough sufficient experience. Yes, sir. तो similar is the issue with a lawyer. वो एक्सपीरियंस का थोड़ा वेट कीजिए, वो करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहेंगे कि कोई आपके पास तुरंत आ जाए तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वन हैज़ टू लर्न ऑन द केसेस ऑफ अदर्स। आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड प्रोफेशन, आई यूज्ड टू फील वेरी सेटिस्फाइड कि मेरे को मेरे सीनियर अपने केसेस पे सीखने का मौका दे रहे हैं। उनके केसेस पे आर्ग्यूमेंट करके उनको भी आप उसी तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे वो आपके अपने केसेस हैं। उसके लिए जजमेंट ढूंढिए, रिसर्च कीजिए। प्लीडिंग्स हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स इज एन आर्ट, बट people start drafting by approaching a typist, saying him, भाई कोई ड्राफ्ट निकाल दीजिए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी का, उसमें ये पर्टिकुलर्स डालिए, ये वाले पर्टिकुलर्स फिगर्स डालिए, इतना अमाउंट है, और प्रिंट निकाल दीजिए या ईमेल कर दीजिए। आई टेल यू, इन माई एंटायर करियर आई हैव नेवर डन इट। आई हैव नेवर अप्रोच्ड अ टाइपिस्ट. My way of working has always been, and I will suggest you also, advise you, it is better to carry out research at your end. जितनी आप जजमेंट्स ढूंढ सकते हैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी की, कम से कम 10 जजमेंट स्टडी कीजिए। आपको ऑर्डर 37 का सूट डालना है, ऑर्डर 37 की 10 जजमेंट स्टडी कीजिए। आपको ऑर्डिनरी सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी डालना है, आप उसकी 10 जजमेंट स्टडी कीजिए, और उसके बाद प्लेंट ड्राफ्ट करना शुरू कीजिए। आपने प्लेंट का एक फॉर्मेट भी कहीं से ले लिया, क्यों ले लिया? सीपीसी, अपेंडिक्स टू द सीपीसी, अपेंडिक्स टू सीपीसी कंटेन्स फॉर्म ऑफ प्लेंट्स. इट सेट्स आउट अराउंड 42 और 44 फॉर्म्स ऑफ प्लेंट. बट सीपीसी पढ़ा था एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वकील बन गए, केस डालना है, केस लड़ना है। उस किताब के एंड में देखिए, एक अपेंडिक्स के अंदर आपको पूरे फॉर्मेट्स मिलेंगे। इवन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे एक यूजर्स हैंडबुक करके लिंक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। प्लेंट का फॉर्मेट मिलेगा, डब्ल्यूएस का फॉर्मेट मिलेगा, सक्सेशन पिटीशन का फॉर्मेट मिलेगा, एमएससीटी पिटीशन का फॉर्मेट मिलेगा। ये जो धर्मसंस की डायरी आती है, इस डायरी के अंदर आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, विल के फॉर्मेट मिलेंगे। यू नीड टू स्टडी। क्यों? क्योंकि जिसकी आपने कॉपी करवाई उस टाइपिस्ट के पास जाके या किसी और वकील साहब से ईमेल मंगवाई, अगर उसमें वो डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड बाय द टाइम दैट केस विल बी डिसाइडेड एंड यू विल कम टू नो दैट देयर वाज ए इनहेरेंट डिफेक्ट, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, यू वोंट बी एबल टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट. सो इट इज़ बेटर टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं. जजमेंट्स हमारे को यही बताती हैं. रिसर्च वर्क बाद में करने की जगह रिसर्च वर्क पहले कीजिए. तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी, द प्लीडिंग्स. देन क्रॉस एग्जामिनेशन इज अनदर स्टेज. क्रॉस एग्जामिनेशन सीखना, सिखाता देखिए कोई भी नहीं है, ठीक है, सीखना पड़ता है. सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मेरे को मेरे सीनियर से अपॉर्चुनिटी मिली, जाओ क्रॉस कर दो. एंड आई वाज लाइक शिवरिंग, क्रॉस कर दो. आई वॉज हार्डली सिंस 7 months और 8 months इन प्रैक्टिस. क्रॉस कर दो. कैसे कर दो क्रॉस? क्रॉस होता क्या है?
तुमने देखा है ना मेरे को करते हुए. दैट वाज ए क्वेश्चन पुट बाय माय सीनियर, थैंक्स टू मिस्टर रमेश कुमार एडवोकेट, जिन्होंने मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी और मेरे को इस लायक बनाया कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकूं. आई स्टिल रिमेंबर द डे ही सेड ओके नाउ यू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, एंड आई वाज लाइक सर कोई गलती हुई, एंड द आंसर ही गेव मी, अगर अब नहीं शुरू करा ना, तू तैयार है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अगर अब नहीं करा तो जिंदगी भर जूनियर ही रह जाएगा. उन्होंने मेरे को मौके दिए, जाइए क्रॉस कीजिए. अब नाउ क्रॉस करने के लिए आई हैड टू स्टडी फॉर आवर्स और डेज. वो मेरे को एक हफ्ता पहले कहते थे इस केस में तू क्रॉस करियो. आई हैड टू स्टडी फॉर आवर्स और यू कैन से ऑलमोस्ट वीक्स टिल लेट नाइट. क्या पढ़ो, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यार तैयार करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने, कैसे पूछने, वो आपको कौन सिखाएगा. वो आपको आपकी फाइल और जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो जजमेंट्स पास हुई हैं, ओरिजिनल साइड के जजमेंट्स अगर आप स्टडी करते हैं, उसमें डिटेल के अंदर पीडब्ल्यू ने क्या कहा, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में जवाब दिए, और डीडब्ल्यूज ने क्या कहा और क्या जवाब दिए, वो डिस्कस्ड होता है. जब आप एक बार ढूंढना शुरू करते हैं और उन जजमेंट्स को देखते हैं, पहली बार जब विल पे मेरे को क्रॉस एग्जामिन करना था, क्रॉस एग्जामिनिंग ऑन अ विल, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अटेस्टिंग विटनेस टू द विल, एंड दैट विल वाज अ रजिस्टर्ड विल. आई वाज लाइक कि इसमें पूछना क्या है, रजिस्टर्ड विल है, इस विल को मेरे को डिमोलिश करना है, बिकॉज आई वॉज अपोजिंग दैट विल, माई क्लाइंट वॉज अपोजिंग, तो आई हैव टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ माई क्लाइंट. तो अब उसको अपोज कैसे करें. तो अपोज करने के लिए विल के ऊपर मैंने कम से कम 40 या 50 जजमेंट स्टडी करी, जिनमें क्रॉस एग्जामिनेशंस डिस्कस किया हुआ था. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतने क्वेश्चंस, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जो मेरे को पहले दिन एक भी नहीं दिख रही थी. मेरे सामने कम से कम 500 सवाल खड़े हो गए कि मैं किस किस तरीके से पूछ सकता हूं टू क्वेश्चन मार्क और डिमोलिश the question mark the veracity of that will, to demolish the attesting witness, the testimony of attesting witness, and to demolish the entire will. And by God grace I could do that. It was before High Court. I could do that. The entire will, which was a registered will, was demolished, and the then presiding officer, I won't name, he was a joint registrar, he, after the moment I demolished the will, he praised me in front of the opposite counsel. Very good cross examination. And that was the question जो आज आपने मेरे से पूछा कि आपकी फैमिली में और कौन है लॉयर, आपके बैकग्राउंड में. मैं कहा सर आई एम द फर्स्ट वन, एंड दैट वाज आई थिंक 5th year of mine since the day of enrollment. Since the day of enrollment, 5th year of mine. So one can achieve one can achieve what he wants, provided he has to carry out research. Research is profession key. It is a key to success in this profession, as per my experience. Okay sir. वैसे जो आगे दो क्वेश्चन था वो तो आपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस में कर दिए आंसर ही. कि मैंने यही बोलना था कि आप क्या क्या सजेशंस आगे जो बच्चे लिटिगेशन में आ रहे हैं उन्हें देना चाहेंगे. तो आई थिंक वो सारी मैं सजेशन यही देना चाहूँगा, सबसे पहले तो पेशेंस अपने माइंड के अंदर फिक्स करें. ये पेशेंस से आप बार बार दूर भागेंगे, आपको लगेगा आपके जो फ्रेंड सर्कल थे स्कूल के, कॉलेज के, लॉ से पहले तक के, वो कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, किसी ने घर बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, अट्रैक्ट करेगा, किसी ने आईफोन ले लिया है. लेकिन आप उससे बहुत आगे जाएंगे अगर आप पेशेंस रखेंगे. और अगर आपको लगता है कि पेशेंस छूट जाती है, बीच में से दिमाग से निकल जाती है, मेक श्योर यू राइट द वर्ड पेशेंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर. इफ यू कैन प्रिंट इट वेरी गुड, एंड देन फिक्स इट ऑन द वॉल ऑफ योर रूम और एनी अदर प्लेस ऑन योर टेबल कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए. अभी पेशेंस रखने, पेशेंस रिसर्च, हार्ड वर्क नहीं बोल रहा हूं मैं. हार्ड वर्क इज समथिंग अ वेग टर्म इन माय व्यूज, क्योंकि करना कहां पर है काम, रिसर्च पे जरूर करना है. देन काम कैसे आएगा, एक होता है लॉ आना,
यस सर। ठीक है ना, लॉ तो मुझे आता है लेकिन काम नहीं आ रहा मेरे पास। तो आप काम तब आएगा जब आप अपने उन कॉन्टैक्ट्स को, जो आपके स्कूल टाइम के कॉन्टैक्ट्स थे, जो आपके लॉ में एंटर करने से पहले के कॉन्टैक्ट से, उनको रिवाइव कीजिए। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, बच्चे के बर्थडे हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए। तो अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव कीजिए। दे नीड टू नो दैट यू आर ए लॉयर। यू कांट एडवर्टाइज योर सेल्फ एज इन व्यू ऑफ द बार पुट बाय एडवोकेट्स एक्ट। बट अगर आप अपनी ये बार एडवर्टाइजमेंट पे है ना, कम्युनिकेशन पे तो नहीं है। कम्युनिकेशन पे नहीं है। अगर आप किसी को बताएंगे ही नहीं कि आप एक लॉयर हैं या आपकी सक्सेस रेशियो क्या है, आपने अब तक क्या किया है, तो व्हाई विल अ पर्सन अप्रोच यू? इट इज सिंपल। ठीक है ना। द मोमेंट somebody is in difficulty, the first name to his mind should be yours. Yes sir, very true. ठीक है ना। तो जब उसके दिमाग में आपका नाम आएगा, आप अभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि उसको एडवाइस देनी है या उसका केस लड़ाना है तो आपको फीस लेनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर शोइंग रिजल्ट, आपके पास उसका रिवॉर्ड आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा। मेरे पास अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने 10 साल बाद मुझे फ़ोन करके कहा, लॉकडाउन पीरियड में, लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था मार्च में, 2 अप्रैल 2020 आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम हिम, अनुज भाई मेरे को एक आपकी पेमेंट देनी है, मेरे मन पे बोझ है। मैंने कहा सॉरी क्या हो गया यार, एंड इज माई स्कूल फ्रेंड। कहता नहीं बहुत पुरानी पेमेंट है, मुझे मालूम है, आपको नहीं याद होगा, 12 साल पहले मैंने 2008 में आपसे काम कराया था एक। मैं कहा नहीं मेरे को काम याद है, कोई बात नहीं, भाईचारे में कर दिया दोस्त, तो रिवॉर्ड आएगा 12 साल बाद आएगा। एंड लॉकडाउन के अंदर पैसा आना किसको बुरा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। इट वाज लाइक उस समय शायद एफडी हो गई थी मेरी एक ना 2008 में। तो आपको ये समझना है कि रिवॉर्ड जरूर आएगा। आप बिल्कुल अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव कीजिए, उनके लिए वर्क कीजिए, उनके जितनी हेल्प कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट जिसके लिए आपने आज काम किया, रिवार्ड नहीं आया, डोंट गेट एनॉयड ऑफ हिम, क्योंकि वो भी स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। इनिशियल जो आपके यार दोस्त होंगे जो वो खुद ही स्ट्रगलिंग फेज में है, उनके इतना पैसा नहीं है कि वो आपको वो फीस दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस सर। बट दैट पर्सन फील ओब्लाइज्ड कि आपने उसकी हेल्प करी, और वो आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं 1 2 3 4 पता नहीं कितने कॉन्टैक्ट से मिलवा देगा, तो वहाँ से काम आएगा। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये रिसर्च, इट इज़ प्री सूट, प्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, प्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, प्री इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ एनी रिप्लाई टू एप्लीकेशन, प्री एट एवरी प्री स्टेज। पोस्ट स्टेजेस का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है ना, कहते हैं ना सांप निकल गया लाठी मारने से क्या होगा, तो उससे पहले रिसर्च कर लीजिए। और रिसर्च करने के अलावा जो एक और ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप उस रिसर्च को अपने पास नोट करके रख लीजिए। एक रजिस्टर बनाइए, नोट करके रख लीजिए अपनी रिसर्च को। ये मत सोचिए कि नेक्स्ट टाइम फिर से कंप्यूटर पे ढूंढ लेंगे, कई बार होता है नहीं मिलती। और आपने अपने नोट्स, जैसे स्कूल कॉलेज में बनाते थे, नोट्स देखते हैं आपको इमीडिएटली याद आ जाता है। यस सर। ऐसे ही ये वाले नोट्स हैं, रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट करके रखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, मतलब ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आ रही है, ये किताबों में कहीं नहीं मिलती, बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं। बिकॉज सिंस वी आर ऑल्सो यंग लॉयर, हमें भी अभी इतना टाइम नहीं हुआ अपना बार का एनरोलमेंट लिए हुए, वी नो पेशेंस टूटती है, हमारे अंदर भी नहीं होती कई बार हमारे साथ भी कई, हाँ एवरीवन फेस दिस थिंग कि पेशेंस वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन मेरे को, जो आपने अभी अपना इंसिडेंट शेयर किया, जब आपके सीनियर ने बोला कि अब इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू करो, उस समय मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस में आते हुए तब क्या डर लगा, एक्साइटेड थे? बहुत घबराहट थी। एक्साइटमेंट तो बहुत छोटी, एक्साइटमेंट का तो पता ही नहीं था थी क्या, बट घबराहट, नर्वसनेस, एंजाइटी, एंड आई टेल यू, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज नॉट कि आई हैड केसेस लिस्टेड, उस समय भी केसेस थे मेरे हाथ में। आई हैड इंडिपेंडेंट केसेस राइट फ्रॉम 2nd month ऑफ माई सेल्फ गेटिंग एनरोल्ड। तो होता क्या था ना, किसी ना किसी पिताजी के किसी मित्र ने एक एज अ मर्सी
हाँ। कि इस लड़के को एक केस दे दो, 5,000 रुपए का चेक डिसऑनर का केस दे दिया। हमारे लिए केस है, यस सर। ठीक है ना, हमारे उस पर सीखा, एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे ऐसे केसेस। तो उस टाइम के ऊपर भी केसेस थे, लेकिन हफ्ते के अंदर 3 दिन 4 दिन लगे होते थे, 2 दिन खाली होते थे। वो 2 दिन बहुत मुश्किल लगता था, मैं कोर्ट क्यों जाऊं, आई विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन कम्यूटेशन, गोइंग कमिंग बैक, आई डोंट हैव अ केस लिस्टेड इन द कोर्ट, बट देन आई मेड इट कि नहीं, आई हैव टू गो देयर। एक शॉपकीपर ये सोचे कि आज दुकान पे सेल नहीं होगी, आज मार्केट जो है वो ठंडी पड़ी हुई है, तो वो ना जाए दुकान पे, दुकान ही ना खोले, ऐसा तो नहीं है। आई मेड इट श्योर कि आई हैव टू गो। एक दिन एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, और इट वॉज अ लर्निंग फ्रॉम ए सीनियर एडवोकेट। आई रीच द कोर्ट एंड आई वॉज इन कैजुअल्स, ब्लू कलर शर्ट एंड जीन्स। सो आई वॉज सेइंग हेलो हाय एवरीवन। मेरे को कोई केस लगा नहीं है, मिलने गए थे तो वकील साहब से 2-4 से मिल करके हम, वन सीनियर एडवोकेट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मिस्टर हेनरी वॉल्टर, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम। उन्होंने मेरे को, हाँ अनुज कैसा है, ठीक है, ओके वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बैठ बैठ बैठ, चाय पिएगा, ओके क्या हुआ आज केस नहीं लगा हुआ? मैंने कहा नहीं सर। हाँ तो दुनिया को क्यों बता रहे हो? वाई यू टेलिंग एवरीवन कि यू डोंट हैव अ केस लिस्टेड टुडे? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो किसी को नहीं बताया। अरे भाई मुंह से बोले बिना तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं ना, वाई आर यू नॉट हेयर इन ए ब्लैक एंड व्हाइट? मेरा भी कोई केस नहीं लगा आज, दैट वॉज हिज। कह रहे मेरा भी नहीं लगा हुआ कोई, लेकिन मेरे केस से पता लग रहा है, मेरे शरीर को देख करके, मेरे वस्त्रों को देख करके आपको पता लग रहा है मेरा कोई केस नहीं लगा हुआ। कह रहे हैं अब मैं प्रैक्टिस करता कहाँ हूँ, अब इतनी उम्र हो गई, आई नीड नॉट, आई डोंट वांट मनी, मैं तो कोर्ट आता हूँ एंजॉय करने के लिए। मेरे पास कल भी नहीं था केस, कल भी था मैं यहाँ पर, कल तुम्हारा भी केस था, तुम कल भी मिले हो मेरे को, यू वर प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, यू शुड बी ऑलवेज ड्रेस्ड अप along with a band right up till 4 o'clock in the evening। पब्लिसिटी अपनी खुद की मत करो, मेरे पास आज केस नहीं है। एंड दैट लेसन आई टुक, सिंस दैट डे onwards till date I have never been to court without a court uniform, except one or twice when I was actually not going to court, I was going to some other place to attend some ceremony or function, but मेरे को कोर्ट में तो अपने ऑफिस के अंदर अपने स्टाफ के पास कोई कागज देते हुए जाना था या किसी से कुछ लेते हुए जाना था, बट उस दिन मैं कोर्ट प्रीमाइसिस में एंटर नहीं करता हूँ, मैं बाहर ही रह जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ समर वेकेशन से तो बात अलग है, बट अगर कोर्ट का वर्किंग डे है या कोर्ट के नॉन वर्किंग डे है तो भी बात अलग है। कोर्ट का वर्किंग डे है, देन यू हैव टू बी इन कोर्ट यूनिफॉर्म। सो दिस इज अनदर एक्सपीरियंस। हाँ डर बहुत था, आपने जो सवाल जहाँ से शुरू करा था, डर बहुत था, बट इस तरह की हमारे को जो सीनियर से गाइडेंस मिलती थी, उस गाइडेंस से मेरा पूरा डर निकला। हमारे को अपोजिट काउंसिल्स, हम अपोजिट काउंसिल से जो हमारे अपोजिशन में है उनसे भी सलाह ले लेते थे। हमने कभी किसी की तरफ फ्राउनिंग फेस से नहीं देखा, कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करा, कभी किसी से गुस्सा नहीं खाया। आज कोई ईगो क्लैश है कुछ कभी रखा ही नहीं। ईगो इज नथिंग, ठीक है ना। यू हैव टू बी श्योर, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो आपको अपने आप रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उनका सपोर्ट भी मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग विच बिल्ड्स कॉन्फिडेंस विद इन यू। यस सर, वेरी ट्रू, ठीक है ना। आपको हमें कभी मान लीजिए किसी डिफिकल्टी में है तो आज तो आप वीसी के ऊपर कनेक्ट करके जज साहब को कह देते हैं। उस टाइम में ऐसा तो नहीं होता था, और आप जज साहब को फोन करके या रीडर साहब को फोन करके तो नहीं कह सकते मैं 10 मिनट लेट आ रहा हूँ। तो हम अपोजिट पार्टी के वकील साहब को ही फोन करके कह देते वकील साहब मेरे को 10 मिनट लेट हो गया है, मैं हाई कोर्ट से अभी निकला हूँ, तो मैं 12 बजे का टाइम है, मैं 12 नहीं 12:15 पहुंच पाऊंगा, कृपया आप जज साहब को बता दीजिएगा। क्योंकि आप अपने क्लाइंट से ये बात कहेंगे तो हो सकता है क्लाइंट कोर्ट में ना हो, और हो सकता है क्लाइंट को लगे कि वकील साहब लेट हो रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप आपके पास जूनियर्स होते नहीं थे, आप तो खुद ही जूनियर थे, आप तो खुद ही फ्रेशर थे, इंडिपेंडेंट लॉयर थे, तो किससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह का आपको टेम्पो अपना बना के रखना चाहिए हमेशा, अपोजिट पार्टीज के साथ, अपोजिट काउंसिल्स के साथ। ओके, तो सर नाउ वी विल कंक्लूड दिस वीडियो। तो एंड कंक्लूजन में एक छोटा सा कि अगर आप कोई इंकरेजमेंट या मोटिवेशन के लिए बच्चों को कुछ बोलना चाहें, जितने भी यंग लॉ एस्पिरेंट्स हैं जो कॉलेज में हैं या जो अभी अभी प्रैक्टिस में आ रहे हैं,
उन सब के लिए कोई encouragement या motivation के लिए anything? See, encouragement के लिए आप you have to always look high. You have to always understand one thing जो मैं अपने बैक ऑफ माइंड में रखता हूँ, हल्दीराम इज नॉट हल्दीराम ओवर अ नाइट. Yes sir. ठीक है ना. हल्दीराम को बनने में, हल्दीराम लेवल पे और इंटरनेशनल बनने में समय लगा, तो समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आई कैन अचीव दैट. If somebody else can achieve, then definitely I too can. Have a word in you, have a trust, faith in yourself, you're working. I can. Just remember, I can. And then proceed ahead. Nothing will stop you. Okay, so thank you sir. बाकी एक चीज़ मैं खुद से भी शेयर करना चाहूँगा, that is कि in 2019 I got my enrollment. एंड मेरी फर्स्ट जॉब सर के पास ही लगी थी. ही वॉज माई फर्स्ट सीनियर व्हेन आई एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन. यस, इंटर्नशिप मैंने कहीं और करी थी, बट जॉब सर के पास थी. इट वॉज 5 अक्टूबर 2019 जब मैं फर्स्ट टाइम सर के पास आया था. तो स्टार्टिंग में तो कुछ समय वही एज एन एडवोकेट इतना एक्सपीरियंस नहीं था. सर के पीछे भी जो घूमते थे, सर ने एक बार ही मेरे को जस्ट टू मेक मी अंडरस्टैंड हाउ अ फाइल वर्क्स इन फ्रंट ऑफ अ जज, एक जज की आगे फाइल कैसे बनती है, सर ने कुछ नहीं बोला. 3 केस थे, वो कनेक्टेड थे. सर ने मेरे को बोला 30,000 ही जाओ. उस दिन मैं अकेला गया था. 30,000 ही जाके सुबह फाइल इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगाओ, एंड उस दिन तुम्हें तीनों फाइलों की इंस्पेक्शन करके मुझे आके बताना तुमने क्या क्या देखा. फर्स्ट टाइम मैं फाइल इंस्पेक्शन करने गया, मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था. मैं फर्स्ट टाइम जज की फाइल देखी, उसमें ऑर्डर्स लिखे, क्या था, कितना कुछ था. जब मैंने वापस आके सर को दिया, सर ने लिया, देखा और फिर साइड में रख दिया. सर ने बोला मुझे पता है क्या क्या है, मुझे ये जानना तुमने क्या सीखा. एंड आई वुड से दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर मी, कि मुझे समझ आ गया कि हाँ भाई अब मुझे अपनी फाइलें कैसे मेंटेन करनी है ताकि मैं जज को आगे समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो दैट वाज अ बिग गाइडेंस फ्रॉम सर. एंड नाउ सिंस आपने एक बात याद दिलाई है तो मैं कुछ कहना चाहूंगा. हाँ जी. देखिए, आप अपने घर पे अगर किसी गेस्ट को बुलाते हैं और आपको पता है कि वो गेस्ट जो है राजस्थान से है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि उसकी पसंद का खाना परोसें उसके सामने. ऐसी कोशिश करेंगे. ठीक है ना. जुडिशियल फाइल जिस मैनर में अरेंज होती है, जिस मैनर में जज साहब के पास होती है, वो मैनर जुडिशियल फाइल का एक ही मैनर है सारे जजेस के पास. आप जब अपनी फाइल उनके सामने पेश कीजिए तो उसी मैनर में पेश कीजिए ताकि उनको कंफर्ट जोन रहे. यस सर. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड. यस सर. कि आप उस मैनर में परोस दीजिए उनके सामने फाइल जैसी उनको चाहिए, जैसी वो रोज पढ़ते हैं. तो इफ दैट इज डन, आप जुडिशियल फाइल से अपने आप, अब जुडिशियल फाइल मैंने बताया नहीं था अभी इस कन्वर्सेशन में, यू हैव टू इंस्पेक्ट अ जुडिशियल फाइल. क्रिमिनल केसेस की, सिविल केसेस की, प्रोबेट केसेस की, सबकी फाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. उसको समझिए. उस तरीके से ही अगर आपने अपनी फाइल भी अरेंज कर रखी है, तब जज साहब जब अपना फाइल का पन्ना पलट रहे होते हैं तो आप भी समझ जाते हैं कि ये किस कागज को पढ़ रहे हैं. आपको जज साहब के साथ मैंने कभी कभी देखा है, ऐसा वाकया हो जाता है कि एडवोकेट्स जज साहब के साथ थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में बात करने लग जाते हैं, पिच चेंज हो जाती है, टोन चेंज हो जाती है. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. शाउटिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प. So just maintain the decorum of the court and try to understand how file works, how law works. Yes sir. And keep your command on CPC, evidence, and for criminal the lawyers who are practicing in criminal sides, then on evidence as well as CRPC. IPC is of course there. तो IPC के अंदर तो सारा क्रिमिनल के सारे क्राइम्स मोर और लेस कवर हो जाते हैं, लेकिन CPC के लिए इट्स ए वास्ट फील्ड. उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो जिनके बेसिस पे केसेस चलते हैं. तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, लेकिन एविडेंस, CPC और CRPC, इन पर आपकी कमांड होनी चाहिए. इनको पढ़ना कभी मत छोड़िए. इनको रूटीन के अंदर रोज का नियम बना लीजिए, मेरे को 5-10 पन्ने CRPC में से, एविडेंस में से और CPC में से पढ़ने हैं, रिपीट करने हैं. लेटेस्ट लॉस की जानकारी रखनी है. आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे
व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें आपके पास लीगल अपडेट्स आ जाते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स है जो लीगल न्यूज़ डालती हैं, सब्सक्राइब देम, दे आर फ्री। हम लोगों के टाइम में हमें को न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता था हर रोज का, अगर हमें को समझना है तो दैट वाज डेली रिपोर्टर्स जो होते हैं वो लेने पड़ते थे। लेकिन आज आपके पास है बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका पैसा भी नहीं खर्च करना, उनको मोबाइल में आने के बाद पढ़े मत रहने दीजिए, उसको प्लीज पढ़िए, रीड करिए, एक्सप्लोर कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी हैविंग। और आप कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड एक बात और कह दूं, इसने सबको डिप्रेस किया है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम आई है, वीसी के ऊपर डिफ़िकल्टीज हैं, नए केसेस नहीं हैं, पुराने केसेस की मूवमेंट नहीं है, एविडेंस नहीं है, ठीक है, बट दिस इज स्टिल बीइंग पॉजिटिव मीन्स टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी। जो भी हुआ है, डेथ्स हुई हैं, अच्छा नहीं हुआ है, लोग बीमार पड़े, डेथ हुई, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दिस इज गिविंग अप ए न्यू फील्ड, क्योंकि जितनी डेथ्स हुई हैं तो अकॉर्डिंगली पीपल हैव टू गेट द प्रॉपर्टीज रेगुलराइज्ड, in legally transferred in the name of the legal heirs left behind. They have to get the succession certificates, so there are opportunities also. So opportunity, whenever something happens, opportunity comes up, so you'll have to, again I'll say, if you are not in contacts, then you will be losing the opportunity, somebody else will be getting that opportunity. True. So don't get depressed in this tough time. The time is tough, but definitely किसी ने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सर के अंदर एक्चुअली सर का बहुत पॉजिटिव नेचर है, बिकॉज व्हेन इवन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू माय ऑन आवर वेबसाइट द लॉ कम्युनिकेंट्स, जब यूट्यूब स्टार्ट किया तब भी सर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं कुछ समय सर के पास काम करके मैंने सर को बताया कि मेरा क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक समवेयर एल्स, इवन दो ही सपोर्टेड। एंड आज भी अगर कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं सर के पास आता हूँ, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अ गाइड, ही इज़ अ वेरी गुड गाइड। इनका एक्सपीरियंस बहुत कमाल है। एंड सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इट वाज अ रियली बिग लर्निंग फॉर अस एंड मेनी अदर व्यूअर्स which we are going to have. I am always available. Thank you, sir. Thank you. Help also. Thank you so much. Thank you.